Okay, so in our module number 3, that is marketing mix part 2, we were going through the topic IMC. IMC means integrated marketing communication. It is a concept where the marketer or the manufacturer is making use of all kinds of medias or all kinds of elements of promotion is available. प्रमोशन का मतलब रहता है जब एक प्रोड्यूसर अपने कस्टमर के साथ बात करता है या अपनी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन. But in olden days, or you can say that, when this particular concept was not very much popular, the manufacturers or the marketers, they used to make either of the use of the mode of the advertisement. Either they used to go only for television or they used to go only for the newspaper. But now it is not the time, because the target audiences and target customers are having their own opinion, they are having their own preferences. So some people may not be watching the television, some people may not be reading the newspaper, some people may not be there on the social media, but all are your customers, all are going to use your product. So it is better to inform all of them by making use of all sources available. That is called as integrated marketing communication. ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप एडवर्टाइजिंग करने के या पब्लिसाइज करने के लिए आपके पास जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे आप यूज करते हैं, right? So this is called as IMC, that is integrated marketing communication, and these are the importance of the IMC. Now here, whatever importance you can see, all these things we have discussed when we were discussing regarding the importance or advantages of promotion. So if you are studying the importance of promotion, the same points you can apply for IMC as well. Now today we are going to understand the concept of sales management. As far as the term management is concerned, management means getting the work done through and with the people. That is a simple definition of management. But we have one more definition of management that says that management means to forecast, to plan, to organize, to coordinate, and to control. These are, the few definitions which are explaining the clear cut meaning of management. So management is nothing. Management means to manage the things, right from forecasting, from planning, from organizing, to finally controlling and achieving the objectives is called as management. मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है जब आप कोई काम शुरू से लेके आखिर तक एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हो और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. नाउ ओवर हियर द वर्ड व्हिच इज गिवन, it is related to sales management. That means sales management is a concept where you are making use of all the functions of management for sales purpose. Once again, I repeat, sales management is a concept where you are making use of all the functions of management for the sales purpose. Sale is the only revenue measure for any business organization. सेल ही एक ऐसा जरिया है जहां से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यूज जनरेट होते हैं. तो आपके भले ही चाहे सारे फंक्शंस परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपके सेल्स ही नहीं है तो सारे के सारे फंक्शंस जो आपने किए हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि आपको कुछ रेवेन्यूज ही नहीं है. और अगर रेवेन्यूज ही नहीं है तो आप बाकी लोगों को सैलरी कैसे पे कर पाओगे? आपकी कंपनी तो बंद हो जाएगी. You may get n number of examples where they have very good managers, where they follow all the principles of management, but due to non getting, or not the recovery of the required amount of sale, the companies got closed. बहुत सारे एयरलाइंस कंपनीज जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका स्टाफ भी बेस्ट है, पर क्योंकि उनको सेल नहीं हुआ, लोगों ने वहां पे ट्रैवल करना पसंद नहीं किया, तो वो एयरलाइंस कंपनीज भी बंद हो गई. दैट इज ओनली वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सो हियर वी आर टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ दिस सेल्स मैनेजमेंट. It is the sales management which is deciding your success or failure.
right? You are having so many marketing mixes. Already we have discussed the four traditional marketing mix elements, then three the advanced kind of, or the recent one, modern marketing mix piece. But apart from that, sales management is also something which is involved at everywhere. हमारे जितने भी मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स है, हर जगह पे ये इन्वॉल्व रहता है, दैट इज कॉल्ड अ सेल्स मैनेजमेंट. So sales management is not only a simple concept, but it is the thing which every organization must understand very carefully, and they have to follow this very religiously. If you are able to manage your sales, that means you can survive for a longer period of time. Not only you can survive, but you can go for the expansion as well. Now let us understand what is the definition which is given in our syllabus. It says that sales management is the process of developing a sales force, coordinating sales operations, and implementing sales techniques to achieve sales goals. So here it is explained that there are three basic functions or three basic stages. The number one is developing a sales force. Second is coordinating sales operations. And third one is implementing sales techniques. All three are very important. सबसे पहले आपको अपना सेल्स फोर्स को डेवलप करना है. सेल्स फोर्स मींस अपॉइंटिंग योर ओन सेल्स स्टाफ. सेल्स फोर्स का मतलब रहता है आपका सेल्स स्टाफ, right? There may be sales manager, there may be assistant sales manager, there may be salesman, there may be personal selling department, there may be some people who are taking care of online selling. That means, whoever employees are directly related with the sales department are called as sales force. उनको कहा जाता है sales force. तो जब सेल्स मैनेजमेंट की बात आ जाती है, तो सबसे पहले तो डेवलप करना रहता है सेल्स फोर्स. ये डेवलप होने के बाद एक बार आपके पास स्टाफ आ गया, नाउ यू हैव टू कोऑर्डिनेट द सेल्स ऑपरेशंस. क्योंकि सेल्स फोर्स जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो सारे एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Like, the employee one, whatever activity he is doing, it is going to affect the activities of second employee, and whatever activities are done by second employee are directly influencing the employee 3 or third employee. That means every employee, whatever activities they are doing, it is going to affect on each other. So there should be proper coordination. उनके बीच में कभी भी coordination lack नहीं होना चाहिए. And if there is a lack of coordination in the sales operations, that link will get broke in between. वो link जो है वो टूट जाएगा, और आपका जो काम है, जो आपने जो टारगेट बनाया है, वो अचीव नहीं होगा. तो ये हो जाती है हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. एंड देन द थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग सेल्स टेक्निक. there are so many sales techniques, that means the measures to increase your sales. वो सारे के सारे आपको अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करने हैं. कहने के लिए तो बहुत आसान हो जाता है कि चलो हम लोग कुछ फ्री गिफ्ट दे देते हैं कस्टमर को, या डिस्काउंट दे देते हैं, या हम लोग ये स्कीम चला लेते हैं. कहना आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. See, when you are giving some kind of gifts or some kind of promotions to your customer, that is your loss actually. You are spending extra money. Sales is a source, from that you are generating the revenue. और यहाँ से ही आप अपना खर्चा भी कर रहे हो. तो ये जब आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने सेल्स टेक्निक्स, आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है कि आपका ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है या नुकसान नहीं हो रहा है. somehow you see that if you are saying that you are giving the discount, of course you give the discount, but you give discount in such a manner that it is not making you to suffer from losses, and at the same time your sales is also getting increased. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है तीनों चीजों को मैनेज करना, वो भी एक प्रोसेस के फॉर्म में. आपको सेल्स फोर्स को भी डेवलप करना है, देन सेल्स ऑपरेशंस की जो एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट भी करना है, और आपको अपने सेल्स टेक्निक को फॉलो भी करना है. इम्प्लीमेंटिंग मींस एक्चुअली यू आर अडॉप्टिंग और व्हेन यू आर फॉलोइंग द सेल्स टेक्निक्स. और ये सब क्यों किया जाता है? टू अचीव द सेल्स फोर्स. So this is a correct and the 100% complete definition
of sales management. Now here you can find out, the similarity of the only term management. Manager is also doing the same thing ना, मैनेजर भी चीजों को प्लान करता है, फिर उसको कोऑर्डिनेट करता है, फिर कंट्रोल करता है. तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर फॉर द सेल्स मैनेजमेंट. Then after that, we have to understand the concept. It says that the sales management is a business discipline which is focused on practical application of sales technique and the management of sales operations. So we can say that it is a discipline. ऐसे एक एक तरीके का विंग है, एक तरीके का मोड है, एक तरीके का यू कैन से मेजर है. ये जो सेल्स मैनेजमेंट है एक तरीके का मेथड है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान देता है. दैट मीन्स प्रैक्टिकली वॉट एवर थिंग्स यू फील feasible, you are applying for it and you are managing the sales operation. So that is sales management. Sales management is different from marketing management. Now here I will just highlight this because this can be asked in the form of MCQs. If the question comes in MCQs that sales management and marketing management are synonymous or similar concept, your answer should be false or no, because sales management is totally different and marketing management is totally different. In our chapter number 1, we have understood introduction to marketing, where we have understood that marketing is a systematic process where the marketers are identifying the demands of the customer, then they anticipate those demands, and then they supply the goods as per the demands of the customers by earning profit. That was the meaning of marketing, which we have understood. So sales is different from that. Sales means where you are focusing on your staff, that means appointment of your staff. Then you are focusing on the activities, whatever they are conducting. And if you feel the training is required, you are giving the training even to the sales staff. And you see that your sales force or sales staff is able to achieve the sales target. So over here, the focus is only on increasing the sales, because in marketing, you have already collected the information from customers and you have already made the goods as per the demand of the customers. So now the turn comes as a sales. अब यहाँ से उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया. जो चीजें आपने कस्टमर के चॉइस के हिसाब से बनाई हैं, जब तक वो चीजें कस्टमर के पास नहीं पहुंचती हैं, आपका काम खत्म नहीं होता है. So the sales management is going to help you to get the results of whatever efforts you have taken so far. एक मार्केटर या एक मैन्युफैक्चरर जितने भी एफर्ट्स लेता है, जितनी भी मेहनत करता है, उन सबको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम सेल्स मैनेजमेंट का रहता है. बिकॉज अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट तभी अचीव होगा जब आपका सेल्स होगा, और सेल्स लाने के लिए आपको सेल्स मैनेजमेंट की जरूरत है. नाउ दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट in any business organization which is having lot of stress. सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट ही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सभी लोगों की मेहनत इनके ऊपर आ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये सेल कर पा रहे हैं या नहीं. सो दैट इज सेल्स मैनेजमेंट. सो सेल्स मैनेजमेंट कहने के लिए तो सिर्फ एक वर्ड है, पर इसके अंदर इतनी ज्यादा डीप मीनिंग है और इतने ज्यादा उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको हम लोग वर्ड्स में तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते. those who are working, those who are already doing job in sales department and all, they can directly correlate this topic with them. कितना टफ होता है अपने स्टाफ को मैनेज करना, अपने लोगों की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, और जो आपने टेक्निक्स बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, और अल्टीमेटली आपकी सेल्स को अचीव करना. It's a very tough job, right? And that is the reason this sales managers or sales department is getting the maximum remuneration also.
इनको मैक्सिमम रेम्यूनरेशन भी मिलता है, इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं, सेल्स मैनेजमेंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स of the sales management, or in simple terms we can say that what are the things which are considered as sales management. ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अगर हम मिला दें, सारी चीजों को मिला देंगे तो बन जाएगा सेल्स मैनेजमेंट. नाउ वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड द ingredients of sales management. The first one is sales planning. We know the meaning of planning. Planning means what? Planning means to decide in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do it. So over here in sales planning, the manager is planning that what kind of products are available for sale, who will be the target audiences, how to reach out to them, how to convince to them, what will be the targets to achieve the sale, and how much will be the target of the sale. क्योंकि कई बार जो आपकी चीजें रहती हैं वो कैपिटल कंजम्पशन रहती हैं, मतलब लोग हर रोज नहीं खरीदते. फॉर एग्जाम्पल कार, कार अगर कोई एक बंदा खरीदेगा आज, तो फिर मुझे नहीं लगता कि 5 साल या 6 साल के बाद या उसके पहले वो सोचेगा कि अभी कार मुझे दूसरी खरीदनी है. काफी पुरानी हो जाएगी, उसके बाद वो सोचेगा कि अभी इसको चेंज करना चाहिए. राइट. तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब आपका जो सेल है वो बहुत ज्यादा होता है कार्स का. तो यहाँ पे भी प्लान किया जाता है कि अभी अगर आज हम लोगों ने कार लॉन्च किया है तो उसकी लाइफ कितने दिन रहेगी, क्योंकि जैसे ही कार एक नया मार्केट में आ गया नए फीचर्स के साथ, कुछ समय के बाद और भी कंपनीज आ जाएंगी वही फीचर्स लेके. तो आपको एक टाइम डिसाइड करना है कि ओके ये जो कार है हमने पहली बार लॉन्च किया है और कम से कम 6 महीने तक कोई नया कंपनी आने वाला नहीं है. 6 महीने के बाद दूसरी कंपनीज भी आ जाएंगी इसी फीचर को लेके, तो हमारी सेल कम हो जाएगी. तो यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ्स का एक प्लान बना के चलते हैं कि 6 महीने में हमें मैक्सिमम मैक्सिमम कार्स बेचनी है, क्योंकि 6 महीने के बाद बहुत टफ हो जाएगा. दैट इज प्लानिंग. राइट. Similarly, if your products are consumable in nature, then you can have it for a long period of time. ठीक है, कंज्यूमेबल चीजें जो है वो तो लोग रोज ही खरीदते हैं, तो वो भी आपको प्लान करके रखना है कि कितने टाइम के लिए आपको अपना टारगेट अचीव करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो योर स्टेजेस. सो द फर्स्ट कंपोनेंट or the first part of sales management is sales planning. Then the next part is recruitment and selection. These are the two different words but are called together. ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, पर जब भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं तो दोनों साथ में यूज करते हैं. तो पहले हम लोग मीनिंग सीख लेते हैं रिक्रूटमेंट की. रिक्रूटमेंट मीन्स व्हेन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई how many sales force or sales staff you require, how many new people you require, and you are asking your target candidates to apply for it. यहाँ पे आपको पहले तो ये सोचना है कि आपको नया स्टाफ कितना चाहिए. लेट अस से आपको लग रहा है कि कम से कम 100 लोग नए आपके पास होने चाहिए सेल्स फोर्स में. आपने 100 का एक टारगेट बनाया है. ओके. अब आपको ये 100 लोग कहाँ से मिलेंगे, आप सिंपली न्यूज़पेपर में ऐड दे देंगे तो आपको लाखों ऐड लाखों लोग अप्लाई कर लेंगे, तो उसमें से तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है ना. तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके के लोग चाहिए. इफ यू आर लुकिंग फॉर द यंग जनरेशन or no those who are very new and who are having the knowledge of sales, you can recruit them. So आपके लिए मेन टारगेट रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो एमबीए कर रहे हैं, और उनका मेन जो सब्जेक्ट है या जो भी उनका स्ट्रीम है वो सेल्स से रिलेटेड है. सेल्स से रिलेटेड. वैसे आर्ट्स का कोई स्टूडेंट रहेगा तो वो एलिजिबल नहीं है आपके लिए. एक आर्ट्स का स्टूडेंट का नॉलेज सेल्स से रिलेटेड नहीं रहता है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो वो आपके काम का नहीं है. तो आपको रिक्रूटमेंट में क्या करना है, सबसे पहले तो ये तय करना है कि कितने नए लोगों को आपको अपॉइंट करना है और वो लोग आपको कहाँ से मिलेंगे. हु आर दीज टारगेट कैंडिडेट्स, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट, एंड यू हैव टू आस्क देम टू अप्लाई फॉर इट. ये आपका हो जाएगा रिक्रूटमेंट. मतलब यहाँ पे आप सिर्फ एप्लीकेशंस रिसीव कर लेते हो,
उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है सिलेक्शन, राइट? सो दीज आर द टू डिफरेंट मैनेजर्स। रिक्रूटर्स अलग होते हैं, सिलेक्टर्स अलग होते हैं, इसके लिए ये दोनों अलग चीजें हैं। अगर आपको कोई पूछता है ना दैट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज द सेम थिंग, योर आंसर शुड बी नो। रिक्रूटमेंट अलग होता है, सिलेक्शन अलग होता है। नाउ सिलेक्शन मैनेजर व्हाट डू दे डू, दे शॉर्टलिस्ट द एप्लीकेशन। जो रिक्रूटर्स ने एप्लीकेशन कलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्टर उसको शॉर्टलिस्ट करता है। मतलब सपोज आपके पास 100 लोगों की जगह खाली है और आपको 5000 एप्लीकेशन आ गए, तो आपके पास 4900 बहुत ज्यादा एप्लीकेशन, आपको क्या करना है उसमें से शॉर्टलिस्ट करना है। इतने ज्यादा लोगों का तो आप इंटरव्यू भी नहीं ले सकते। तो 5000 में से लेटेस्ट से आपके पास अभी 1000 एप्लीकेशन आ गए, आप फिल्टर करोगे उसको, मतलब जिसका हाईएस्ट परसेंटेज रहेगा, या ऑफिस के नजदीक घर होगा, या एक्सपेक्टेशन सैलरी एक्सपेक्टेशन जिसकी कम होगी, ये आप सारे पैरामीटर्स बना के आपको शॉर्टलिस्ट करना है। फिर शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनको आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है। आफ्टर इंटरव्यू यू कैन टेक द स्किल टेस्ट, आप उनका स्किल टेस्ट ले लो कि वो सेल्स कितना कर सकते हैं, एंड देन फाइनली यू कैन सिलेक्ट देम, दैट इज सिलेक्शन। So both the words, both the terms are different from one another, but whenever we call, sorry, we call these two terms together. हम लोग कभी भी रिक्रूटमेंट अलग करके नहीं बोलते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। बोलने के टाइम पे दोनों वर्ड साथ में बोले जाते हैं, बट बोथ द वर्ड्स आर हैविंग इट्स ओन डिफरेंट मीनिंग। सो अंडर द सेल्स मैनेजमेंट, द सेल्स मैनेजर्स, दे डू इवन दिस वर्क, अपॉइंटिंग। पहले तो आपने प्लान कर लिया, आपने प्लानिंग में ये तय किया कि आपका टारगेट कितना होगा, टाइमिंग कितना होगा, फिर यहाँ से पता चल जाता है कि अरे हमारे पास तो इतना स्टाफ ही नहीं है, वी नीड न्यू स्टाफ। तो फंक्शन आ जाता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, एंड इट इज अ वेरी टफ जॉब। हाँ, सिलेक्टिंग पीपल फॉर सेल्स मैनेजमेंट इज अ वेरी टफ जॉब, बिकॉज especially in India, the candidates, they don't prefer to go for sales department। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे उनको सेल्स स्टाफ चाहिए, या सेल्स डिपार्टमेंट में जगह खाली है, तो आप में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि सेल्स में कौन जाएगा। वी नीड नो द काउंटर जॉब, वी नीड द अपफ्रंट जॉब or the desk job. This is what you are looking for. Very few may be interested to do go for the sales management. So यहाँ पे सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। रिक्रूटमेंट भी टफ है क्योंकि आपको अच्छे लोगों को अपॉइंट मतलब उनको एप्लीकेशन लेने के लिए आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ टफ जॉब विच इज डन बाय द सेल्स मैनेजमेंट। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज ट्रेनिंग द सेल्स स्टाफ। अब यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो गई, you have appointed 100 new candidates for your organization. Now you have to give them the training. Training means you can give training on the job or you can give training off the job. On the job training means they will be working in your office or in your organization, and you may be having your own trainers. They will be providing training to them, and then and the training timing or the training tenure, the salary will be very less for them. But once the training is over, then they will be start working for that. That is on the job. Then off the job training means you may not be having your own trainers. So what you will do, you will send your sales staff to some specialist or to some trainers outside the organization. एक असेसमेंट सेंटर करके एक नया कॉन्सेप्ट है। ये असेसमेंट सेंटर्स क्या करते हैं, जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, असेसमेंट सेंटर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कंपनीज के स्टाफ को, तो उनको कॉर्पोरेट ट्रेनर्स कहा जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ अपना एक एग्रीमेंट बना के चलते हैं, और फिर जब भी ट्रेनिंग की जरूरत है या अपने स्टाफ को सिखाने की जरूरत है, तो अपने स्टाफ को वहां भेज देते हैं। मतलब उनका स्टाफ ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, वो डायरेक्टली असेसमेंट सेंटर में जाता है और ट्रेनिंग ले लेता है। द ट्रेनिंग में बी फॉर 1 वीक, मे बी फॉर 15 days, or it may be for 1 month. That depends upon the staff. So after train recruitment and selection, now you have to send your staff or the sales staff for getting training, and then placement of employees. For placement, I'll be just writing one line over here.
placing right person for right job. Because in sales management also you are having so many functions to be performed. For each and every function, the special skill is required, and that special skill you have to identify from your trained staff. आपने यहाँ पे स्टाफ को अपॉइंट किया, उनको आपने ट्रेनिंग दे दी, और जितने भी आपके पास स्टाफ मेंबर्स हैं, हर एक स्टाफ मेंबर में कोई ना कोई क्वालिटी रहेगी। कोई कोई ऐसा स्टाफ रहेगा जो बिल्कुल शांत रहता है पर उसका कैलकुलेशन अच्छा है। कोई स्टाफ ऐसा रहेगा जिसको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है पर वो बात करने में बहुत ही इंप्रेसिव है। किसी किसी का लुक्स अच्छा रहता है जिसको देख के लोग बात करना पसंद करते हैं। लाइक एवरी पर्सन इज हैविंग their own qualities. So over here, the sales manager have to identify the people, and accordingly the work should be given to them. So that is called as placing right person for the right job. जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जो लोगों को कन्विंस कर पाता है, आप उसको पर्सनल सेलिंग डिपार्टमेंट दे दो, क्योंकि वो कस्टमर से बात करके उनको कन्विंस कर सकता है। और अगर कोई ऐसा है जो कैलकुलेशंस में अच्छा है, मतलब वो सोच सकता है कि हाँ इतना परसेंटेज अगर हम लोग डिस्काउंट दे देंगे तो फिर इतना फायदा होगा, तो आप उसको प्रमोशन डिपार्टमेंट में ले लो। कुछ लोग रहेंगे जो बहुत ही क्रिएटिव रहते हैं, इन्हें एकदम नए नए आइडियाज आपको लाके देते हैं, तो आप उनको अपने प्रमोशन डिपार्टमेंट में ले लो। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड एज प्लेसमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें सेल्स से ही रिलेटेड है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज द अनदर कंपोनेंट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, वेयर द सेल्स मैनेजर is placing the right person for the right job under placement of employees. Then the next component is performance appraisal. Performance appraisal means you have to evaluate the performance of your employees and you find out their strength and weaknesses. आपके पास जितने भी लोग काम करते हैं, उस काम का आपको एक इवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे आप जब तक स्कूल या कॉलेजेस में हैं, तो टीचर आपको इवैल्यूएट कैसे करता है? एग्जाम्स कंडक्ट करके। आप टेस्ट अपियर करते हो, एग्जाम्स लिखते हो, तब जाके आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है कि ये बच्चे को ए ग्रेड देना है या बी ग्रेड देना है या सी ग्रेड देना है। तो ये हो जाता है आपका परफॉर्मेंस इन एजुकेशन। लेकिन जब आप कहीं पे काम करते हो ऑफिस में, तो आपकी ग्रेडिंग कैसे होगी? मतलब कैसे डिसाइड किया जाएगा कि आपको प्रमोशन देना चाहिए या आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए? तो ये होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। So performance appraisal is a mechanism where the managers are evaluating the work related strength and weaknesses of the employees. काम से रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है, और इस रिपोर्ट कार्ड में आपकी सारी बातें आ जाती हैं, और फिर वहां से डिसाइड किया जाता है कि आपको प्रमोशन देना है या आपको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि आप काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, मतलब जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते हैं, तो आपको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये भी एक फंक्शन है, एक कंपोनेंट है सेल्स मैनेजमेंट का। Then the next component is motivating the sales staff. Of course, you have to motivate, or constantly you have to motivate your sales staff, because it is the sales staff which is going to bring revenue for everyone. सबके लिए जो पैसा आने वाला है, सबके लिए जो सैलरी आने वाली है, वो ये सेल्स स्टाफ ही लेके आने वाला है। तो इनको आपको मोटिवेट करके रखना है। दे शुड नॉट गेट डीमोटिवेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो डीमोटिवेट हो गए तो आपका रेवेन्यू बंद हो जाएगा, जनरेशन जो है आपका बंद हो जाएगा। सो समहाउ यू हैव टू मोटिवेट देम। अब मोटिवेशन कैसे की जा सकती है? यू कैन गिव देम एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स, you can give them extra commission if they are working hard and if they are achieving the targets in time. You increase their commission, you increase their incentives, and with that particular motivation, they will work hard even on holidays. सेल्स स्टाफ एक ऐसा स्टाफ है, अगर आप उनको ऐसा बोलोगे कि आपने ये मंथ में इतना सेल कर दिया ना, तो 10% प्रॉफिट का आपको दिया जाएगा, और 10% ऑफ प्रॉफिट मतलब लाखों में जाता है। तो ये सेल्स स्टाफ उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। छुट्टी वाले दिन भी चुप नहीं बैठेंगे, वो कस्टमर से बात करते रहेंगे, क्लाइंट्स के साथ बात करेंगे, और देखेंगे कि डील फाइनल हो रही है। That is called as motivating the sales staff. Even that is also the component of sales management. And the last one is monitoring sales performance. You have to keep an eye that how the sales is performing. आपका सेल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपको कंटिन्यूअसली
मॉनिटर करते रहना है ऑन डेली बेसिस। कल कितना सेल हुआ था, आज कितना सेल हुआ, परसों कितना हुआ था। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले दिनों में कितनी सेल्स होगी। और अगर आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में सेल्स और कम हो सकता है, तो आपको आज ही डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट मीन्स आप फिर से प्लानिंग की स्टेज में चले जाएंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं एक प्रोसेस के फॉर्म में ही चलते हैं, और जैसा ये प्रोसेस लास्ट स्टेज तक आ जाता है, वापस से वो स्टेज नंबर 1 में चला जाएगा, फिर से ये सारे स्टेजेस फॉलो होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ये सेल्स डिपार्टमेंट की रिलेटेड है, जितने भी फंक्शंस हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट का है। Okay, so with this note, this particular topic comes to an end, and in our next period, we are going to start a fresh topic called as personal selling.